Assalamu alaikum, aap dekh rahe hain The Haider Rifaat Show Season 8 Specials. I'm your host Haider Rifaat, and joining me today is Bilal Akmal Rana, who is a vet by profession. He is also an entrepreneur. And we'll be talking about animal abuse in Pakistan, which is very much rampant. So thank you so much, Bilal, for sparing time for this interview. सबसे पहले, before moving to the topic, आप अपने बारे में थोड़ा viewers को बताएं. What is your background and what really prompted you to become a vet? So I come from a veterinary family. Both my parents are veterinary doctors. They're surgeons, and क्या कहते हैं, just followed into the family business. I enjoy doing surgery. That's like my interest in being a doctor. But entrepreneur wali side is basically after I graduated, I always knew I was going to come back and work for the family business. Right. Lekin you don't have that much excitement in this profession in this country. So that led me to explore some other things. I am kind of like a self-taught chef as well. So I opened my food business. That mashallah is doing good. So that's expanding. That takes up more than half of my time. The other half goes to the clinic. Is तरह से I divide my time with being a doctor and I see. That's fantastic, and you're doing mashallah a great job. मैं अब बात करना चाहूँगा animal abuse पे, क्योंकि हमारा topic ये है आज का. It's very much increasing. पाकिस्तान के अंदर जो भी animal abuse हो रहा है, dozens of dogs were poisoned to death by District Municipal Corporation DMC East in Karachi, and Karachi already has a rabies control program. और पाकिस्तान के अंदर बकायदा laws भी हैं that protect the rights of animals under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1890. So अब ये regulating body है which is poisoning dogs, and then again we have the laws that protect animal cruelty. तो ये disconnect क्यों है, and why do you think this is such a big issue in Pakistan compared to other countries? यार एक we're a third world country, ठीक है, वो मुस्लिम फैक्टर पाकी प्लीती वाला सीन आ जाता है. lot of people are not open to मतलब handling or helping out dogs, like even मतलब having them in the house. दूसरी बात ये है कि रेबीज़ पाकिस्तान में कितने हुए हैं, मे बी like 1 out of 1,000 केस in the last 50 years. रेबीज़ ऐसा कोई मसला नहीं है. दिस इज़ मोर लाइक क्या कहते हैं, ग्लोबल वो एक बात बनी हुई है कि रेबीज़ इज़ अ थिंग. रेबीज़ इज़ लाइक वेरी वेरी रेयर. मसला आता है जब आपकी जगह गंदी होती है, आपके जानवर फिर रहे होते हैं, कूड़े से खा रहे होते हैं. इफ दे एंड अप बाइटिंग यू, दे विल नॉट गिव यू रेबीज, लेकिन दे विल गिव यू अदर इन्फेक्शंस दैट आर वेरी हार्मफुल कंपेयर टू अ डॉग दैट ईट्स इन योर हाउस. इट हैज़ क्लीन सलाइवा, एंड व्हेन दैट डॉग बाइट्स यू, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ये हमारे पास इम्पाउंडिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, हमारे पास प्रॉपर हेल्प नहीं है, हमारे पास वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते. तो अगर आप मतलब स्टेट एनिमल्स को इरेडिकेट करते हो इन टर्म्स ऑफ पिकिंग देम अप एंड लीविंग देम टू एन इम्पाउंड भी होने चाहिए, उसको संभालने के लिए टीम होनी चाहिए, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि नहीं है. तो व्हेन यू डोंट हैव दैट, तो फिर आप जानवरों को किधर संभालोगे. एंड व्हेन यू कैन नॉट लुक आफ्टर द क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी और योर एनवायरनमेंट इन जनरल, फिर आप जानवरों से मतलब दैट इज़ हाउ यू विल गेट रिड ऑफ देम. जब उनको रखने की जगह नहीं है तो यू विल किल देम. बिलाल, जहाँ तक बात रही एक प्रॉपर मैकेनिज्म की इन द कंट्री, तो आपको लगता है कि वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर एनिमल्स, विच इज़ वाई उनकी ये हालत हो गई है? देखें, जाहिर है दैट्स लाइक गिव एंड टेक वाली बात है. आप किसी चीज़ का ख्याल करोगे तो वो आगे से बेहतर प्रोग्रेस करेगी. जानवरों का जिस तरह से इधर आपका राइट्स हैं और जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए और करवाए जाते हैं, इवन टू द पॉइंट ऑफ हाउ we can do things in the clinic or like the kind of things that put us into trouble, उसमें जाहिर है मतलब if you mistreat a profession and if you mistreat a living thing, तो जाहिर है आगे फिर मसला होगा. Exactly. And as a vet, आपने आपके तजर्बे में have you ever come across certain animals जहाँ पे आपके क्लिनिक में आए हों and you feel like they were abused? हाँ यार, इस तरह के होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, स्पेशली गांव वगैरह में या जो पहाड़ी इलाकों में इस तरह अक्सर देखने में मिलता है. जो ख़ास तौर पे जो एग्रेसिव वाला जानवर होगा ना, उसको ये लोग पिंजरे में बंद कर देंगे. ज़्यादा टाइम रखेंगे ही उसको पिंजरे में, खाना पिंजरे में देंगे, दिन में 5 मिनट के लिए बाहर निकलेगा. उससे ना जानवर साइकोलॉजिकली एग्रेसिव होगा. ठीक है, कहने को ये भी एनिमल अब्यूज़ है. आप जानवर को चलने फिरने की जगह ना दो. देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वेरी वायलेंट विद एनिमल्स. जानवर को कभी रिस्ट्रेन करने के लिए उसके साथ वायलेंट होना पड़ता है. मतलब you have to dominate, basically to dominate anything you have to make yourself bigger than the other person. You have to do that with animals. We do it on a daily basis. लेकिन जहाँ पे जानवरों को मारने पीटने वाली बात आ जाती है, बहुत ज़्यादा होता है.
हाँ मतलब क्या है, अभी रिसेंटली एक हुआ था, एक यहाँ पे गांव में एलिगेटर्स वर कॉट बीइंग स्किन्ड फॉर बैग्स लाइक 30 or 35 ऑफ देम, और वो इस्लामाबाद का कोई बंदा था. तो दिस इज एनिमल अब्यूज. राइट, एग्जैक्टली. आपको लगता है कि कोई स्टिग्मा अटैच्ड है रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग्स और अदर एनिमल्स जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, वी परसीव दैट द एनिमल इज डेंजरस या तो खतरनाक होगा? कोई मिसकंसेप्शन हो स्ट्रे डॉग्स के हवाले से या वैसे, जो कि लगता है कि इट्स हार्मफुल टू द पब्लिक, लेकिन एक्चुअली दैट इजंट द केस? एक तो बात यह है कि अगर हमारा लाइक एज एन एनवायरनमेंट वी आर क्लीन, स्ट्रे एनिमल्स आर नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज अगेन देयर सलाइवा इज क्लीन. They would be eating from clean places, and they wouldn't be getting that harmful bacteria which would be transmitted to someone if they in case bite someone. ठीक है, सबसे पहली बात आपकी उधर होती है. सेकेंडली आपका ये है कि हम लोग वो वाली कौम है कि हम कुत्ते को देख के पत्थर मारते हैं. When you throw a stone at a dog, the dog will. बिल्कुल बिल्कुल. आओ चुप करके जा रहे हैं आप, उसको चलने दो, वो भी गुजर जाएगा, आप भी गुजर जाओ. लेकिन जब उसको पत्थर मारोगे तो वो मुड़ के काटेगा. राइट. प्लस वी एज कॉम आर लाइक जंगली पीपल, आर जानवर आर आल्सो वेरी जंगली. तो या राइट राइट. सो एज अ वेट आपको क्या लगता है कि एनिमल राइट्स को किस तरह से सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? एनिमल राइट्स को किस तरह से करना चाहिए, this has been a debate for a very long time. Ever since I was a child I've been listening to these things. क्योंकि वो जब हमारा इशू आता है ना पाकी पलीती वाला, उधर ये लोग एनिमल राइट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं. मेनली आपके जो हाउस होल्ड के जानवर हैं वो कुत्ता बिल्ली हैं जो दैट आर बेसिकली वेरी क्लोज टू यू. बर्ड्स इन द हाउस आर नॉट दैट क्लोज टू यू. हॉर्सेज दे विल नॉट कम इनसाइड एंड बी दैट क्लोज टू यू. उसके अलावा पीपल हु हैव एक्सोटिक एनिमल्स दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस ऑफ गेटिंग क्लोज टू देम, राइट? तो द 70% of the क्या कहते हैं the population of animals that you can keep inside the house, if that is considered to be a dog, and more than half of your population considers that as पलीत, तो जब तक वो चीज़ नहीं बदलती तब तक आप एनिमल राइट्स को प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. लाइक टू बी एबल टू एक्सरसाइज राइट्स प्रॉपर्ली यू नीड टू गेट क्लोज टू समथिंग, यू नीड टू लाइक मतलब गेट योर हैंड्स डर्टी विद इट. लेकिन जब वो पलीती का फैक्टर आ जाएगा और आप कुत्ते को हाथ ही नहीं डालोगे या जानवर आ जाएगा तो आप बस उसको जूती मार दोगे, तो फिर एनिमल राइट्स आप क्या करोगे? वी हैव प्रोटोकॉल्स, वी हैव टीम्स, वी हैव NGOs, लेकिन नो वन इज डूइंग नथिंग. वो कभी के बाद पब्लिक स्टंट के लिए निकलते हैं फॉर वैक्सीनेशंस, फॉर लाइक सम टॉक इन सम पार्क और समथिंग. या जब कोई इस तरह मसला होता है जिस तरह ये आपका एलिफेंट का इशू हुआ था, तब काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो मतलब कैमरे 4 लगे होते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद अगले दिन सब गायब हो जाते हैं. Exactly. This is a consistent thing that needs to be done. The government needs to hire like private people. Private people are way fast, they're more experienced, they're more educated, they have a better understanding of how to do things. Because ज़ाहिर है सरकार की अपनी limitations हैं, जो प्राइवेट हैं वो ओपन काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट किसी प्राइवेट एजेंसी को, क्लिनिक को, किसी भी प्राइवेट कंसल्टेंट को बीच में आने नहीं देती. लाइक वी पर्सनली ट्राइड टू मतलब बी कंसल्टेंट्स ऑफ द जू, बट द कंसल्टेंट्स दैट आर ऑलरेडी देयर, दे डोंट वांट टू गिव द सो कॉल्ड शेयर, द हराम कमाई शेयर टू एनीवन एल्स, even though no one's looking for haram kamai, but they don't want anyone else entering the group and like messing up the system that they've set for themselves. तो जब तक ऐसा रहेगा सिस्टम तब एनिमल राइट्स तो कुछ भी नहीं हो सकता. सबसे पहले आप एनिमल राइट्स को, अभी तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रे की. इफ यू गो टू द जू व्हिच इज लाइक गवर्नमेंट नेशनल सेंटर, it caters to different species, it caters to their diet, it caters to their medicine. You take a look around the zoo, any zoo in the country, एनिमल राइट्स तो आपको उधर ही क्लियर हो जाएंगे. एग्जैक्टली, बिल्कुल. सो एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास डिस्पाइट हैविंग लॉज फॉर एनिमल्स, उनकी एनिमल क्रूल्टी के खिलाफ एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन फिर भी एनिमल अब्यूज इज सो रैम्पेंट इन पाकिस्तान. वेरी लास्टली टुवर्ड्स द एंड, बिलाल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे टू द पाकिस्तानी यूथ एंड ओवरऑल पीपल हु अबाउट एनिमल अब्यूज? क्या कहना चाहेंगे उन्हें? यार अबाउट एनिमल अब्यूज, लाइक it's a living thing, why abuse it, why like be bad to it. मतलब अगर जंगली जानवर है, अपना काम कर रहा है, जा रहा है, तो it will pass by, it won't say anything to you, so you don't have to say anything back to it. We unfortunately live in a country where there's no like control of such things happening. You cannot stop animals from like roaming around your streets freely, so we should not just mess with them. उसके अलावा like जानवर है,
अगर गली में फिर भूखा होगा, there are a lot of kind people that feed animals that मतलब are that have like small क्या कहते हैं spaces that they've made outside the house with shelters जहाँ पे जानवर जो जिनको वो feed कर रहे हैं, तो like the hot days they go there and sit. अब एक मतलब एज ए लेमैन आप यही कर सकते हो. आप 100 जानवर को पकड़ के घर के अंदर नहीं लेके आ सकते, ना ही वो प्रैक्टिकल है, ना ही वो करना भी चाहिए आपको. जानवर जानवर है, इंसान इंसान है, लेकिन वट एवर यू कैन डू टू लाइक मेक देम कंफर्टेबल, आप वो थोड़ा बहुत कर लो. अच्छा, आई वाज गोना कंक्लूड, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्लिनिक में हाउ मेनी एनिमल्स हैव यू सपोर्टेड सो फार? यार द थिंग व्हाट वी डू इज we have this NGO. Due to lack of space, we don't bring animals and keep them with us. We support them in terms of treatment, in terms of very basic surgery, that is spay, neuter, or like declawing in case there's like a claw infection, or like ear clipping in case there's an pinna infection or something. उसके अलावा हम लोग एडॉप्शन करवा देते हैं, हम रेस्क्यू कर लेते हैं, हम अपने पास रख नहीं सकते. देन अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ आती है, देन वी ट्राई टू लाइक गिव इट ऑफ टू अनदर कैनल और एनी इम्पाउंड फैसिलिटी जो कि उसको संभाले. वी डोंट हैव स्पेस अगेन बिकॉज वी आर प्राइवेट सेक्टर थिंग, तो आवर स्पेस इज लिमिटेड. एंड डू यू हैव लाइक अ प्रॉपर वेबसाइट जहाँ पे अगर लोगों को जाना हो, इफ दे वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्लिनिक? We have a website of the clinic. We are on social media. If anyone wants information, they can go to Dr. Rana's Pet Care Center. Same domain, website, Insta, Facebook, सब पे है. All the information is available. The clinic is open 24 hours, so they can call in and get like live information. They can visit the clinic. Doctors are always there. So I'll leave the link in the description box as well. Thank you so much, Bilal, for joining me. That is all for now. Stay tuned for more on my official YouTube channel and Facebook page. Until then, take care. Allah Hafiz.